بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج 29 شب قدر ہے، یعنی اس سال کی یہ آخری شب قدر ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سال کی شب قدر عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے 4 شبوں میں ہمیں سب بیدار رہ کر اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرما رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ ہم اللہ کے اس فضل عطا کرنے پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زبانیں بھی اس لائق نہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کا شکر ادا کر سکیں، لیکن اللہ تعالی نے اپنے کلام کے اندر جو اپنا شکر ادا کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اسی کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر ادا کرنے کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اگر تم نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میں اپنی نعمتیں تم پر دو چند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ دین کی دولت عطا فرمائی ہے، شب قدر میں شب بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں پوری زندگی ہمیں آخری سانس تک دو چند کر عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی عظمت اور اس کی اہمیت پر ہر سال آپ علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں، وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی آیات ہیں، وہی احادیث مبارکہ ہیں، بس انداز بدلا ہوا ہوتا ہے یا ایک انداز خطاب بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو شب قدر جس کو نصیب ہو جائے، اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے 84 سال اور چند مہینے چند دن سے زیادہ عبادت کا ثواب، یعنی اگر ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ شب قدر عطا فرما دی تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنے سال کی عبادتوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت بہت سال ہوتی تھیں، جیسا کہ انبیاء کی عمر آپ نے سنا 950 سال تو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، دعوت دی اپنی قوم کو، حضرت علیہ السلام نے ان کی عمر سے زیادہ تھی۔ تو اس امت کی عمریں ضرور کم لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایوریج عمر 190 تک جاتی ہے، لیکن جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی گئی تو آپ فرمایا کہ میری امت کی عمریں ضرور کم کر دی گئی ہیں، لیکن ثواب جو ہے میری امت کا پچھلی امت سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت کے طور پر میں نے بیان فرمایا، اس امت کو خیر امت کہا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما کر بے مانگے یہ دولت اور انعام ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھیے کہ جب باجماعت نماز پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں جو ہے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر اگر ہمیں زندگی میں خلوص نیت کے ساتھ جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے اعتبار سے ہمیں چند شب قدر بھی نصیب ہو گئی، تو یہ سمجھ لیجیے آپ کیلکولیٹ کریں تو کتنی سالوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرما دیا، یا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، مجھے چند باتیں اس شب قدر میں جو آخری شب قدر ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے یقین کامل رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ ہم یقین رکھیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے گا۔ وہ تمام رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، فضیلتیں اور جو کچھ بھی جیسا احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کی تشریحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے شب قدر میں عطا فرمائے۔ مجھے چند باتیں کہنی ہیں جو عام روش سے ہٹ کر ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک اپنے خطاب کے اندر یہ کہا تھا کہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزر رہے تھے، وہ جذبات، وہ احساسات مسجدوں میں آنے کے اعتبار سے محسوس ہو رہا تھا، لوگوں کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا، وہ جذبات جو شروع عشرے کے اندر تھے، وہ جیسے جیسے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل لوگوں کی ہوتی گئی 10 دن میں یا 12 دن میں یا 15 دن میں، ویسے ویسے ان کے جذبات بھی سرد ہوتے چلے گئے۔ تو خدا را اس کیفیت کو سرد مت ہونے دیجیے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ایک یہ ریہرسل کرائی ہے، یہ ایک پریکٹس کرائی ہے۔ یہ ریہرسل، یہ پریکٹس پورے سال کے لیے ہوتی ہے،
एक महीने का अरसा, एक महीने की प्रैक्टिस पूरे साल काम आती है। फिर साल गुजरने और फिर रमज़ान अगले साल आ जाता है, अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई। तो लिहाजा जो जज्बात अल्लाह ताला ने इबादत के, बाजमात नमाज के, अहकाम के, सदक़ात के और खैरात के और दीनी एहसासात के और गुनाहों से दूर रहने के, झूठ और ग़ीबत से बचने के और तमाम रसूमात बातिला से बचने के, नहीं अनिल मुनकर करने के, अम्र बिल मारूफ करने के, ये एहसासात जो अल्लाह ने अता फरमाए, तो वो एहसासात हमारे आखिरी सांस तक रहने चाहिए। इसके अंदर सर जज्बा नहीं आना चाहिए। जैसे हमने नमाज़ों की पाबंदी बाजमात की, अपनी तमाम तर मशगूलियात के साथ हमारी नमाज़ों की पाबंदी बाजमात इसी तरह रहनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी रहनी चाहिए, पूरे साल रहनी चाहिए। ये मशक़ कराई जाती है, इसलिए कुरान पाक का तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि रमज़ान में एक माहौल होता है, एक जहन बना हुआ होता है, जो माहौल और जहन रमज़ान के अलावा नहीं होता। अपनी मशगूलियत भी आइल होती हैं, लेकिन अपनी मशगूली के साथ साथ हम अपनी महल्ले की मस्जिद में हमने जो है वो फजर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ पढ़ी, और जब रमज़ान गुजर जाएंगे, जहाँ हमारी सर्विस है, जहाँ हमारी मुलाजमत है या जहाँ हमारा कारोबार है, वहाँ के करीब मस्जिद में हम जमात नमाज का एहतमाम तो कर सकते हैं। और कुरान पाक की तिलावत सुबह को फजर के बाद या घर से निकलने से पहले या शाम को सोने से पहले हम कर सकते हैं। टाइमिंग ज़रूर चेंज हो जाए, लेकिन हमारी नमाज़ों की जमात का एहतमाम तब्दील नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम नहीं होना चाहिए। और कुरान पाक का हक़ ये है कि कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि हम तिलावत कुरान पाक से महरूम रह जाएँ, सिवाय सफ़र, हारी बीमारी, दुख दर्द के, या हारी बीमारी दुख दर्द सफ़र में अल्लाह ने रुख्सत दी है, तो उसमें रिवायत से भी साबित होता है जिसका जो मामूल हो, अगर सफ़र में और बीमारी मोदा कर सके तो अल्लाह उसको उसके मामूल से सवाब से महरूम नहीं करता। तो ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। मस्जिदों को हम इसी तरह जमात से आबाद रखें, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दौर के अंदर हमारे मामलात के अंदर बहुत कमी है। मामलात से मुराद ये है कि हम झूठ जो है मस्जिद में बैठ कर झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल पर धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, घर में बैठकर हमसे कोई सवाल किया जा रहा है कहाँ हो, हमने कहा मैं बस रास्ते में अभी आ रहा हूँ, बैठे हम घर पर हैं, तो इसका एहसास हमें नहीं होता। ये गलत है। अगर हम ये कह दें कि भाई मैं अभी घर पर हूँ, बस मैं निकलने वाला हूँ, आप फ़ोन काटते निकलूंगा, तो आपकी बात तब भी समझ में जाएगी। आपने कहा मैं रास्ते में पहुँच रहा हूँ, आज रास्ता मुकम्मल कर लिया, तो ये सही झूठ है, तो ये समझ लीजिए। और ये शैतान का धोखा है। तो इस रमज़ान में जैसे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा झूठ बोलने से, तो इस तरह का झूठ जैसे मैंने मिसाल देकर आपको समझाया, ये भी झूठ है। मिसाल के तौर पर मेरे एक उस्ताद से मुझे कहा करते थे, अगर आप से फ़ोन आया और किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये भी गलत है। अरे आप कुछ तो कर रहे हैं कि बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, या खाना खा रहा हूँ, या जो भी कुछ आप घर पर कर रहे हैं वो आपको कहना चाहिए मैं इस वक्त तो बैठा था भाई, कुछ काम नहीं कर रहा था। अब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। अरे बैठे हुए आप कुछ तो घर में कर रहे हो, ये भी झूठ है। यानी इस तरीके से उन्होंने अपने तलबा को, अपने मुतालिए को समझाया कि झूठ को शैतान ने इस तरह के हालात बना दिए कि इंसान कोई एहसास से नहीं होता, कोई झूठ बोल रहा है, हालांकि वो धड़ल्ले से झूठ बोल रहा होता है। तो ये शब क़द्र जो गुजर रही है, इसके साथ जैसे जैसे साथ गुजर रही हैं और सूरज फजर आ रहा है और सहरी का वक्त आ रहा है, फिर सहरी के वक्त ख़त्म होंगे और ये जो है शब क़द्र के साथ ख़त्म होंगी, तो हम ये अहद मुसम्मम कर लें, अहद कर लें कि नमाज की पाबंदी इसी तरह करेंगे, झूठ से, ग़ीबत से और हर तरह की बुराइयों से, मुनकिरात से हम अपने आप भी रोकेंगे, अपने भाइयों को भी रोकेंगे और इसकी तबलीग करेंगे। इस बात का एहतमाम और अहद लेना है आज शब क़द्र के अंदर। हमें यही शब क़द्र का सबसे बड़ा इनाम होगा और अल्लाह तबारक तआला की सबसे बड़ी हमारे ऊपर ये फजीलत होगी और अल्लाह का इनाम होगा और एहसान होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हम रमज़ान के बाद फिर अपनी पुराने रविश पर आ गए, नमाज हमने ऐसे ही गंदेदार पढ़ ली, झूठ हम धड़ल्ले से बोलने लगे और बुरा मुनकरात सब हम करने लगे, तो बताइए फिर ऐसा लगा कि शायद रोज़ों के असरात, यानी एक महीने तक के जो असरात कम से कम कुछ महीने तो रहने चाहिए थे और रमज़ान ख़त्म होते ही हमने वो असरात ख़त्म कर दिए, तो इसका मतलब हमारे रोज़ों के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी जो अल्लाह को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से अल्लाह की वो रहमत जो आनी चाहिए थी, सिवाय इसके कि फरीदा हमसे रोज़ों का अदा हो गया, रोज़े हमने क़ज़ा नहीं करने हैं, बाकी जो रहमतें और बरकतें अल्लाह की थी वो अल्लाह ने हमें कमा क़वत नहीं फरमाई। और वो अदा फरमाना हमारी अपनी नीयत के ऊपर था, हमारी नीयत सही नहीं थी। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इंसान के तमाम अमाल का मदार नीयतों पर है और इंसान को नीयत के एतबार से अल्लाह के यहाँ फैसले होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी है, दूसरों को भी बतानी है। पूरे साल हमें नेकियों की तरफ रग़बत दिलाना है। तो उसी चीज़ में नौजवानों से कहूँगा, आज नशे की लत नौजवानों में पड़ी है। खुदा ये नशा एक ऐसी लत है, एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसी बुराई है कि हर बीमारी को अपने अंदर ले आती है।
हर बुराई को अपने अंदर ले आती है। खुदारा इस नशे की लत को छोड़ दीजिए। नए नए किस्म के नशे आ रहे हैं, हम सड़कों पर देखते हैं, गलियों में देखते हैं, जब नाश को आते हैं नौजवान लड़के जो है सिगरेट में नशा कर रहे हैं, बीड़ियों में नशा कर रहे हैं, माचिस वो कागज़ में लगाकर माचिस जलाकर उससे नशा करते हमने देखा। हम समझाते भी हैं, हमने मुनासिब समझा कि इस मुबारक साथ में भी अपने नौजवान साथियों का यह हक अदा करें, तो उनको हम समझाएं कि नशे की लत को छोड़ दो। जब नशे की लत पड़ जाती है तो फिर ये बुराई आम हो जाती हैं, नमाज़ों से गफलत हो जाती है, और नशे की लत के लिए और दूसरी बुराइयाँ चोरी करना, झूठ बोलना और पैसे चुराना वगैरह जैसे आदत उसके अंदर आ जाती हैं। तो खुदा के वास्ते जब आप नशा छोड़ देंगे तो देखिए वालिदैन का अदब एहतराम करेंगे, वालिदैन का अदब एहतराम करेंगे, उनकी इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, तालीम पर जोर देंगे। आज सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तालीम के जेवर से रास्ता नहीं होंगे तो हमें कोई भी बहका देगा, और जब हमारे पास तालीम होगी तो दुनियावी तौर पर हमें कोई नहीं बहका सकता। जब हम उलमा की सोबत में बैठेंगे, दीनी तालीम और उलमा की सोबत में बैठकर हासिल करेंगे तो हमें आखिरत के तौर पर और आखिरत के एतबार से भी और दीनी एतबार से भी हमें कोई नहीं बहका सकेगा। ये चंद एहसासात से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखें। आज उम्मत मुस्लिमा चारों तरफ से दुनियावी तौर पर जो पिट रही है, और वो इससे कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये शिया सुन्नी झगड़े और दिल्ली देवबंदी बरेलवी झगड़े ये हमारे पैदा किए हुए हैं। ये उम्मत वाहिदा है। आज ये उम्मत वाहिदा, ये उम्मत वाहिदा बनकर हमें रहना होगा, और उम्मत वाहिदा बनकर जब हम रहेंगे और इन झगड़ों को ख़त्म करेंगे, और कुरान जो नाजिल किया गया अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए पूरी उम्मत के लिए, तो उस पर हम एक होकर जब कुरान के उसूलों पर अमल करेंगे, कुरान की तालीमात पर अमल करेंगे, तो अखयार की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि हमारी तरफ उंगली उठाकर भी देख सके। आज जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आज जो हमारे ऊपर इस तरह के हालात बन रहे हैं कि हमें आपस में इख्तिलाफात है, हम आपस में ही एक दूसरे को मारने और नोचने और खसोटने और लड़ाई में इतने मुलविस हैं कि अखयार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो आपस में जो हैं, इनको आपस में जलाकर हम इनको देश से नाबूद कर सकते हैं। ये तो अल्लाह तबारक तआला का फजल है कि अल्लाह ताला ने दीन की बरकत से, कुरान पाक की बरकत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की बरकत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से, अपने फजल करम से हमें महफूज फरमा रखा है। बस ये तवील गुफ्तगू हो गई, ये चंद एहसासात मेरे से जो मुझे आप लोगों से शेयर करने थे। अल्लाह ताला हमें शब क़द्र अता फरमाए, तमाम रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी ज़कात, सदक़ात और जुम्ला इबादत जो अल्लाह तबारक तआला ने हम करने को दी, अल्लाह ताला उसको सबको कबूल फरमाए, और इस आखिरी शब क़द्र में हम सब के लिए परवाने मग़फ़िरत जारी फरमा दे। अल्लाह ताला जब हम अपने घरों को लौटें इस हाल में लौटें कि अल्लाह की जानिब से हमारी मग़फ़िरत का परवाना हो चुका होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।